Good morning, my dear student. Today, we are going to start your class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. My dear, if you have remember my previous class, that what I taught you, you are all aware of that we have completed the little bit information about Islam. We discuss in that class the five principles of Islam, origin of Islam, and invasion, Islamic invasion on India. These type of other information I taught you on that day, on my previous video. Today, we will try to focus the next topic, the growth of Sufism. The growth of Sufism, this topic is very interesting and important. In this topic, we will read that how the Sufism emerged in India and it widespread in whole Indian continent. We also study that the sect in Sufism. My dear, first of all, I would like to teach you the paragraph which is given in your book. Then, after, I will tell you the little story of Sufism. Okay, let me read your paragraph and then after I will discuss this. In the early centuries of Islam, a group of religious minded people called Sufi turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphates as a religious and political institution. They were critical of the democratic definition and scholastic method of interpreting the Quran and Sunnah. Sunnah, it means tradition of the prophets, adopted by theologians. Instead, they laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His command and by following the example of the Prophet Muhammad from the they regarded as a perfect human beings in Sufis. The sought and interpretation of the Quran on the basis of their personal experience. This is very clear. Having read this paragraph, we can say that when the expansion of caliphates throughout whole world, I mean to say that especially the northwest, especially West Asia, Mid Asia, Europe, some part of the Europe, we had seen that Islam widely spread. The caliphates who were religious, Khalifa, they were religious leader of Islam, they were deputy of prophet. तो जो ये लीडर थे, जो खलीफा थे, इन लोगों ने मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अपने को ज़्यादा आकर्षित कर लिया और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस्लाम में वो लोग जिन्होंने भौतिकतावादी मेटलिस्टिक अप्रोच का विरोध किया,
और ईश्वर की व्याख्या, अल्लाह की व्याख्या एक नए तरीके से की, ऐसे लोगों को ही सूफी कहा गया। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर करने का प्रयास किया। मेरे कहने का सेंस कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में जो खलीफट्स की बढ़ती भौतिकतावादी अप्रोच के अगेंस्ट कुछ स्पिरिचुअलिस्टिक लोग, कुछ रहस्यवादी और वैराग्य की ओर बढ़े हुए लोग ने खलीफट्स की इस भावना का विरोध किया। लोगों के मन में भी अध्यात्म की भावना जगी, स्पिरिचुअलिज्म जगा, और फिर इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा इस्लामिक स्कॉलर के द्वारा की गई कुरान और सुन्ना के बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को उन लोगों ने इंसान कामिल बताया और उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर किया। इफ यू रीड द लाइन व्हाट ही एक्सप्लेन, आथर क्या कहता है? कहता है कि सूफीज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being. Prophet is regarded as a perfect human being. इंसान एक कामिल है वो। And again I am saying the Sufi that sought an interpretation of the Quran on the basis of their personal experience. अपने व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या की। अब यहाँ पे सूफीज़म क्या है, सूफीज़म को समझना जरूरी है। सूफीज़म एंड तसव्वुफ, एज मेंशन इन योर बुक द definition of Sufism. Sufism is an English word coined in the 19th century. The word used for Sufism in Islamic text is tasawwuf. Historians have understood this term in several ways. According to some scholars, it is derived from Suf. It is derived from Suf. Suf, it means wool. Referring to the coarse woolen cloth worn by Sufi. Others derive it from Safa. Safa meaning purity. It may also have been derived from Sufa. Sufa, it means platform outside the Prophet's mosque, were a group of close followers assembled to learn about the faith. सूफीवाद या सूफीज़म शब्द का प्रयोग किसी भी इस्लामिक सूफी ग्रंथ में नहीं किया गया है। सूफीज़म शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग, सूफीज़म के लिए जिस वर्ड का प्रयोग अरेबिक टेक्स्ट में, पर्शियन टेक्स्ट में किया गया है, वो शब्द तसव्वुफ ही है। तसव्वुफ, दैट इज द एग्जैक्टली यूज्ड फॉर दोज पीपुल हु डेडिकेटेड हिम। किसके लिए? भगवान के, अल्लाह के लिए। ऐसे संतों को तसव्वुफ शब्द से जाना गया। सूफीज़म को तसव्वुफ कहा गया। I mean to say that कि Sufism word that was never used in the Arabic and Persian text for Sufism. Sufism is an English word. Sufism is an English word coined in the 19th century. Sufism जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है
इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वह तसव्वुफ है। सूफीवाद 19वीं सेंचुरी में आया हुआ एक शब्द है। 19वीं सेंचुरी के पहले सूफी या इस तरह के सूफीवाद जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ पे सूफीज़म को समझने के लिए आपको कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। जैसे सूफी किसे कहा गया? सूफी उन लोगों को कहा गया जो लोग ऊन के कपड़े पहनते थे। इतिहासकारों का मानना है कि सूफ से बने हुए कपड़े को, ऊन से बने हुए कपड़े को, उस खुरदरे ऊनी कपड़े को जो सूफी पहनते थे, जो लोग पहनते थे, उन्हें सूफी कहा गया। कुछ अन्य हिस्टोरियन कहते हैं कि सूफीज़म की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है। सफ़ा का मतलब प्योरिटी। देयर इनर कंसियंस वॉज वेरी प्योर देन कॉमन मैन। सफ़ा जो प्योरिटी है उससे सूफीज़म बना। और फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सूफा एक शब्द है जिससे सूफीज़म बना होगा। सूफा का अर्थ हुआ कि प्रोफेट मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसके निकट लोग बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे, और उनकी ये मंडली इस्लाम के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी, इकट्ठी होती थी। और इस चबूतरे पे बैठे हुए लोग इस्लाम की व्याख्या अपने स्पिरिचुअल अध्ययन के आधार पर करते थे। तो जो लोग इस्लाम की व्याख्या अपने स्पिरिचुअल अध्ययन के आधार पर करते थे उन्हें सूफी कहा गया। तो इस प्रकार सूफीज़म के लिए आपके बुक में 3 शब्द दिए गए हैं, सूफ, सफ़ा और सूफा, या सफ, सफ़ा और सूफा। तो ये शब्द सूफीज़म को एक्सप्लेन करते हैं। एक और शब्द जिसकी व्याख्या मैं करना उचित समझता हूँ, वन अदर वर्ड विच इज आल्सो connected with the Sufism. Some historians believe that the origin of Sufism word from Sophia. Sophia is a Greek word. Sophia meaning knowledge, ज्ञान। सोफिया का अर्थ हुआ ज्ञान, उस ज्ञान को पाने वाले लोग। ये लोग जिनके पास इस तरह का ज्ञान था उन्हें सूफी कहा गया। सूफियों में खानका और सिलसिला का बड़ा महत्व था। खानका क्या होती है? 11वीं सेंचुरी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था, संस्थागत दृष्टिकोण से स्थापित हो गया। सूफी अपने को संगठित समुदाय, खानका एक पारसियन वर्ड है, खानका के इर्द गिर्द स्थापित कर लेते थे। और खानका का नियंत्रण एक शेख अरबी शब्द है, शेख या पीर को फारसी वर्ड है, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। इस खानका का कंट्रोल उसी पीर या शेख के हाथ में होता था। वे अपने अनुयायियों की भर्ती करते, अपने वारिस की नियुक्ति करते और आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वाले लोगों के बीच और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते। 12वीं सेंचुरी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला एक शाब्दिक अर्थ है। सिलसिला का अर्थ है जंजीर, चेन। जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच, जो पीर और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है, अनब्रेकेबल रिलेशन, जिसकी पहली अटूट कड़ी प्रोफेट मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक
पहुंचता था। सूफिज्म में दीक्षा लेने वाले लोग के लिए कुछ अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित व्यक्ति को, जिसमें सूफी सेक्ट को मानने वाले लोगों को खास तौर से ट्रेंड किया गया, खास तौर से उनकी बाहरी आडंबर को बदला गया। जो लोग सूफीज्म में दीक्षित होते थे उनको अपने गुरु के प्रति निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर और एक प्रकार का कपड़ा थीगड़ा पहनना पड़ता था उन्हें, थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करना पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है दरबार। तो पीर की मृत्यु के बाद मुरीद के लिए ये दरगाह भक्ति का स्थल बन जाती है। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए लोग उनकी बरसी पर आते थे और धीरे धीरे एक परिपाटी चल पड़ी, एक नियम बन गया कि जब उनकी बरसी होगी, जिस समय वो मरे या जिस समय वो ईश्वर में विलीन हुए, अल्लाह में विलीन हुए, वो तिथि उर्स के रूप में बनाई गई। उर्स का मतलब विवाह। कैसा विवाह? पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन का अवसर, इसे ही उर्स कहा जाता था, क्योंकि लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। कई सारे सिलसिलों का नाम हम इस पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। फॉर एग्जाम्पल कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम जो मिड अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया, चिश्ती सिलसिला। तो इट मीन्स कि सिलसिलों का नाम या तो पीर के जन्मस्थल के नाम पे बना और या तो उन्होंने अपने वंश के नाम पे, नाम के आधार पे उस वंश के सेक्ट की स्थापना कर दी। वली क्या होते हैं? वली बहुवचन वली का प्लूरल फॉर्म औलिया है, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात या मिरेकल पावर रखता था, उसे वली कहा। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चिश्ती सिलसिला का प्रचार प्रसार कब हुआ? इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम आपको एक बार आपके पैराग्राफ को पढ़ के सुना देते हैं और फिर आपको सूफिज्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करते हैं, जिसकी बात मैंने क्लास के स्टार्टिंग में की। खानका एंड सिलसिला। बाय द 11th century, Sufism evolved into well-developed movement with a body of literature on the Quranic studies and the Sufi practices. Institutionally, the Sufi began to organize communities around the hospice of Khanka. Khanka is a Persian word, as I told you, as I teach you. Controlled by teaching master known as Sheikh in Arabic, Pir or Mursid in Persian. He enrolled disciples, murids, and appointed a successor, Khalifa. He established rulers for spiritual conduct and the interactions between the inmates as well as between layperson and the master. Sufi Silsila began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century. The word Silsila literally means a chain, signifying a continuous link between master and
disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. It was through this channel that spiritual power and blessing were transmitted to devotees. The special rituals of institutions were developed in which initiates took, and each oath elegance were part the patched garment and shaved their hair. When the Sheikh died, his tomb, shrine, dargah became the center of devotion for his followers. This encouraged the practice of pilgrimage or ziyarat to his grave, particularly on his death anniversary or Urs. As I told you, Urs meaning the marriage, signifying the union of his soul with God. This was because people believed that in death, saints were united with God and were thus closer to Him than when living people sought their blessing to attain material and spiritual benefit. Thus evolved the cult of the Sheikh, revered as Wali. What do you mean by Wali? As I told you and taught you, the Wali, the plural awliya or friend of God, was Sufi who claimed proximity to Allah, acquiring His grace, barakat, to perform miraculous power, करामात. वली उन्हें कहते हैं जो ईश्वर का मित्र है, सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है और अपने अंदर बरकत से करामात करने की छूट रखता है. उसके पास इतनी ताकत है कि वो अल्लाह की बरकत से अपने चमत्कारिक, अपने जो करामात की शक्ति से लोगों को ठीक करेगा. ये बातें हैं. Outside the Khanka, some of the mystic initiated movement based on radical interpretation of Sufi ideals. Many scorned the Khanka and took mendicancy and observed celibacy. They ignored rituals and observed extreme form of asceticism. They were known by different name: Kalandar, Madari, Malang, Hadri, etc. Because of this deliberate the defiance of the Sharias, they were often referred to be Be-Sharia, in contrast to the Ba-Sharia, Sufi who compiled with it. कहता है कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी. खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे. गरीबी और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया. इन्हें विभिन्न नामों से भी इस्लामिक कल्चर में जाना जाता है, सूफीज़म कल्चर में जाना जाता है. कलंदर जैसे, मदारी जैसे, मलंग, हैदरी, बहुत सारे नाम इनके दिए गए. शरिया की अवहेलना करने वाले, शरीयत की बात न मानने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था. इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाला बाशरिया, जो शरीयत का पालन करते थे उन्हें बाशरिया, जो पालन नहीं करते थे उन्हें बेशरिया कहा जाता.